Assalamu alaikum. Dear students, today we are starting with conflict perspectives. In fact, there can be more than one conflict perspectives. The common theme of all these perspectives is that they do not uh, assume like functionalist perspective that society is running like a machine naturally. So they deny that order as the essential attribute of society. They think that whatever order or relationships and patterns we observe in society, they are not natural. Natural in the sense that they are not the result of a historical process in which society has become like a machine. Rather, it is the result of domination of certain groups of society. And the essential attribute of society is conflict. Even if we assume that there is order, this order is fabricated. This order is imposed and designed by the privileged groups of society. So essentially, there is a conflict, according to these sociologists, between different groups. So they assume that society is composed of different groups in conflict with one another. This is the main idea of this perspective. And then there can be different shades of this perspective. इसमें जो है, some people, some sociologists have even thought that this conflict is based on authority and power. Others think that this is based on economic status, and still others can think that it is based on certain um, ethnic groups, and still others can think that this is based on gender. So feminism is also, you can say, a shade of conflict perspective. But the dominant perspective within conflict perspectives is Marxism, right? And still it is the most important conflict perspective, and we will discuss in detail about Marxism. So we will discuss Marxist perspective, Marxism. Karl Marx, you definitely know this name, Karl Marx, the most important, you can say, social scientist of 19th century. He was born in 1818 and he died in 1882 perhaps. He was German, but he spent most of his time in England. He's buried in London, or I mean, another name comes immediately to mind whenever we discuss Karl Marx, and that is Friedrich Engels. His friend, his I mean, they co-authored many books. The most important work of Karl Marx is Das Kapital. Das Kapital. This is in German. Das is definite article. It means simply the capital, right? The capital. So इसी तरह जो है his another work is Communist Manifesto, और इसके अलावा I mean manuscripts of 1844. So Karl Marx जो है, he is basically philosopher and economist. He had PhD in philosophy and PhD in economics, and he was some sociologists and sociologists of Marxism. They say that Marx combined different intellectual currents in his works, and it is usually said that he combined German philosophy with French revolutionary thought, and then British economics. So British economics, he took many ideas from British economics and took ideas from French romantic and we can say that political revolutionary thought, and thirdly German philosophy. So एक का इन सब का synthesis जो है वो मार्क्स में मिलता है, but synthesis is his own and it's an original thing.
कार्ल मार्क्स का जो इन्फ्लुएंस है, वी नो दैट कार्ल मार्क्स इज his influence spread it in 19th and 20th century. 20th century can rightly be called as century of Karl Marx. It was not possible that a person is thinking about society, issues of society, and he does not know Karl Marx, and he has not any position about Karl Marx. One can reject Karl Marx, or one can accept, or one can accept partially, or whatever is his position, but he has to take some position. Karl Marx cannot be ignored by a thinking person, and particularly a person who is thinking about society. Iqbal in our area, he was influenced by Karl Marx. उनकी नज़्म है कार्ल मार्क्स की आवाज़, नीस्त पैगंबर व लेकिन दर बगल दारुद किताब. सो लेनिन पे भी है. सो मार्क्स के आइडियाज़ में भी हमें इकबाल के आइडियाज़ में हमें मार्क्सिज्म की और लेनिन के आइडियाज़ की कुछ it is perhaps not possible to state that Iqbal was a Marxist. ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो मार्क्स की पोइट्री में इकबाल की पोइट्री में हमें नजर आता है. Marx himself was also a poet. He was a journalist, a poet, an economist, a philosopher, a sociologist. That is why he is discussed in political science, philosophy, economics, और तो इस तरह से उनकी जो थॉट जो है लिटरेचर में जो है, हमारे यहाँ उर्दू में तरक्की पसंद अदब की तहरीक है पूरी, और उसमें शॉर्ट स्टोरीज में हम नाम पढ़ते हैं कृष्ण चंद्र, उससे पहले प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, इन सब पे जो है वो मार्क्स की थॉट का असर है. पोइट्री में हम पढ़ते हैं फैज़ अहमद फैज़ और साहिर लुधियानवी, और उसके बाद जो है वो हबीब जालिब की जो शायरी है, तो दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सिस्ट आइडियाज़. और शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी ना हो जो कि क्लेम करती हो कि वो मार्क्सिस्ट आइडियाज से इंस्पायर है. सो मार्क्स की जो अपील है, दिस इज अनदर क्वेश्चन इन सोशियोलॉजी, दैट व्हाट एक्सप्लेन्स द अपील ऑफ मार्क्सिज्म. वो हम शायद बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मार्क्स की बात क्या है. मार्क्स जो है वो ही टुक फ्रॉम हीगल, ही स्टार्ट्स फ्रॉम हीगल. हीगल जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर है और जर्मन फिलोसोफर है, और जर्मन जो आइडियलिज्म है उसका वो एक रिप्रेजेंटेटिव है. आइडियलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल, यू कैन से, स्कूल जिसका ये कहना है कि द अल्टीमेट रियलिटी इज कॉन्शियसनेस, द अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिट. इस हम कायनात पे गौर करें तो हमें दो चीज़ें नजर आती हैं. द होल यूनिवर्स, वी कैन फाइंड टू थिंग्स, आइदर वी फाइंड मैटर और वी फाइंड कॉन्शियसनेस. एज वी आर डिस्कसिंग, अभी ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये कौन कर रहा है, ये क्या है, ये खुद डिस्कशन क्या चीज़ है. सो दिस इज कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, स्पिरिट, जो भी इसका नाम रखें आप, बट दिस इज एक्स्ट्रा मटेरियल, दिस इज मोर देन जस्ट मैटर. तो कोई चीज़ है जो जिसको हम शऊर कहते हैं और एक मादा है. सो अब अल्टीमेट रियलिटी क्या है? सो कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी जो है वो शऊर है, और मादा जो है दैट इज क्रिएटेड, देयर इज एन अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, वो अल्टीमेट स्पिरिट है, और उसने ये सारा एक तरह से ये जो सारा कायनात है वो वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है. और दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं कि अल्टीमेट रियलिटी जो है वो मैटर है, और मैटर फिर जो है वो यहीं पे फिर एक थ्योरी एवोल्यूशन कहती है वो इवॉल्व कर रहा है. तो इनएनिमेट मैटर था, फिर एनिमेट हुआ, जिंदगी पैदा हुई, और जिंदगी में ही आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता कॉन्शियसनेस भी पैदा हो गया. सो मैटर, उसके बाद लाइफ, और उसके बाद कॉन्शियसनेस. सो इस तरह चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं. सो कॉन्शियसनेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ मैटर, इट इज़ नॉट द रियलिटी. ये मादी ही यानी मेटेरियलिज्म की फिलॉसफी है, मादियत की फिलॉसफी. सो मेटेरियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म, ये दो एक तरह से फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं. जो हीगल है वो आइडियलिस्ट है. आइडियलिस्ट का लफ्ज यहाँ पे उस सेंस में नहीं है, याद रखिएगा, जिस सेंस में वी यूज दिस वर्ड इन कॉमन इन एवरीडे टॉक, ही इज आइडियलिस्ट और ही इज नॉट. और मटेरियलिस्ट भी इस सेंस में नहीं है कि मटेरियलिस्ट का ये मतलब नहीं है यहाँ पे कि पर्सन हु वांट टू बिकम रिच और वो पैसे को अहमियत देता है, ज़्यादा पोजेशंस को अहमियत देता है. मटेरियलिज्म इज फिलोसॉफिकल स्कूल. सो इसी तरह
सो जब हम कहते हैं कि हीगल आइडियलिस्ट है, उसका मतलब ये है कि हीगल, अकॉर्डिंग टू हीगल, द अल्टीमेट रियलिटी इज कॉन्शियसनेस। और आइडियाज असल में है रियल, जो रियलिटी जो है वो आइडियाज की है। और आइडियाज जो है उनमें एक तरह से अल्टीमेटली जो रियलिटी है सोसाइटी की, इंसानों की, वो मूव कर रही है और वो ट्रूथ की तरफ बढ़ रही है। और अल्टीमेट जो स्पिरिट है उसमें और इंसानों की जो करंट रियलिटी है उसमें जो गैप है, उसमें जो एक तरह से डिस्क्रिपेंसी है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो रही है। और एक उसकी वजह से हिस्ट्री मूव कर रही है। तो हिस्ट्री की जो मूवमेंट है वो एक तरह से स्पिरिट की तरफ है और ऐसी सिचुएशन की तरफ है कि जिसमें ये रियल और ट्रू जो है वो एक हो जाएगा। और ये जो मूवमेंट है ये आइडियाज की रियल में है, कॉन्शियसनेस में है। तो ऑल हिस्ट्री इज मूवमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू हेगल। मार्क्स जो है, अच्छा यहाँ पे उसने एक और बात लिखी कि आइडियाज के अंदर आइडियाज मूव कैसे करते हैं, आइडियाज की जो मूवमेंट है उसके मैकेनिज्म को हीगल एक्सप्लेन करता है फर्दर। वो ये कहता है कि एक आइडिया जो है वो है, फॉर एग्जांपल उसको वो कहते हैं थीसिस। दिस थीसिस देन अट्रैक्ट्स इट्स ऑपोजिट। क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है तो उसके ऑपोजिट को वो, अपने ऑपोजिट को वो अटैक करता है। थीसिस और उसका ऑपोजिट है एंटी थीसिस। तो थीसिस और एंटी थीसिस जो है वो फिर कोलाइड करेंगे और उनकी कॉन्फ्लिक्ट है, एंड इट दे विल जनरेट दिस relationship between thesis and antithesis will ultimately generate synthesis। और synthesis जो है वो it would be neither complete thesis nor complete antithesis, it would take from both but it would be a new thesis। Then that new thesis would again attract its own antithesis and again a new synthesis। So इस तरह से आइडियाज जो है वो मूव करते जाएंगे अल्टीमेटली उसे रिजॉल्व करने के लिए रियल और ट्रू के गैप को। और अल्टीमेटली जो है हिस्ट्री जो है वो इस तरह से बन रही है। ये जो थीसिस और एंटी थीसिस का क्लैश है, क्लैश ऑफ ऑपोजिट्स, इसको उसने टर्म कॉइन की डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स, डायलेक्टिक्स का मतलब क्या है, उर्दू में हम कहते हैं जदलियात। जदल आपने सुना होगा, जंगो जदल, इन टकराना, क्लैश ऑफ ऑपोजिट्स। तो क्लैश ऑफ ऑपोजिट्स जो है वो डायलेक्टिक्स है। और ये कहाँ पे हो रहा है अकॉर्डिंग टू हीगल, इट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, क्योंकि कॉन्शियसनेस असल है। तो उसकी थ्योरी को हम कह सकते हैं डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, कार्ल मार्क्स जो है वो हीगल से ये बात एक्सेप्ट करता है पार्शियली। एक तो ये कि यानी डायलेक्टिक्स को वो लेता है और वो ये कहता है कि थीसिस और एंटीथीसिस का क्लैश है। लेकिन एक बात में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसमें वो हीगल के बिल्कुल ऑपोजिट है। हीगल कहता है कि असल चीज कॉन्शियसनेस है, असल चीज आइडिया है। मार्क्स डिनाइज दैट। मार्क्स इज मटेरियलिस्ट, ऑपोजिट टू आइडियलिस्ट। मार्क्स ये कहता है कि अल्टीमेट रियलिटी मैटर है और इंसान जो है वो मैटर से डील कर रहा है। और वो एक ऐसी स्पीशीज है, एक ऐसी क्रिएचर है कि जो अपने सर्वाइवल के लिए मैटर पे काम करता है। ही वर्क्स ऑन मैटर, वो कल्टीवेट कर रहा है, वो चीज़ें बना रहा है। तो ये जो उसकी एक तरह से इकोनॉमिक लाइफ है, ये उसकी जो मटेरियल कंडीशंस हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ये अल्टीमेट है सोसाइटी के लेवल पे। और यूनिवर्स के लेवल पे अल्टीमेट चीज़ मैटर है। तो ही इज मटेरियलिस्ट। और फिर वो मटेरियलिज्म को सोसाइटी पे जो अप्लाई करता है तो वो कहता है कि ह्यूमन मटेरियल कंडीशंस यानी ह्यूमन इकोनॉमिक कंडीशंस, दे डिटरमिन आइडियाज, दे डिटरमिन एवरी अदर थिंग इन सोसाइटी। सो इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो डिटरमिन करती है फिलॉसफी को, रिलीजन को, पॉलिटिक्स को, वैल्यूज को, आइडियाज को, कल्चर को। सो जितनी बाकी चीजें हैं दे आर डिटरमिन्ड बाय द मटेरियल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, द मोड ऑफ प्रोडक्शन, द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, किस तरह से क्या सिचुएशन है, क्या स्पेस है जिसमें इंसान क्रिएट करता है मुख्तलिफ चीज़ों को, फिजिकल और इकोनॉमिक स्पेस। तो उसको जो है वो असल है और उसमें फिर क्लैश हो रहा है। सो थीसिस और एंटी थीसिस जो है ये आइडियाज नहीं है बल्कि ये मटेरियल कंडीशंस हैं।
एक खास सिस्टम जो है, एक खास इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो थीसिस है, वो फिर उसके अंदर उसका क्लैश पैदा होता है और वो टकराते हैं और एक नया इकोनॉमिक सिस्टम पैदा होता है और उस नए इकोनॉमिक सिस्टम से फिर हिस्ट्री बनती है। यानी हिस्ट्री जो है वो बेसिकली क्लैश ऑफ क्लासेस है, या यूं कह लें क्लास स्ट्रगल है। डिफरेंट जो इकोनॉमिक क्लासेस हैं उनका असल में क्लैश होता है और उसके नतीजे में जो है वो हिस्ट्री बनती है। हिस्ट्री की जो मोटर है वो डायलेक्टिक्स है, लेकिन डायलेक्टिक्स कौन सा? मेटीरियलिज्म वाला डायलेक्टिक्स, उसको हम कहते हैं डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म। हेगल की थ्योरी को हम क्या कहेंगे? डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। और मार्क्स की थ्योरी को हम क्या कहेंगे? डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म। इसको हम हिस्टोरिकल मेटीरियलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि मार्क्स ने हिस्ट्री को इंटरप्रेट किया कि पूरी हिस्ट्री जो चल रही है, मूवमेंट हमें, हिस्ट्री किस चीज का नाम है? सोसाइटी इन मूवमेंट। सोसाइटी मूव क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पीछे जो इकोनॉमिक्स है वो मूव कर रही है। जो इंजन है सोसाइटी का या मोटर ऑफ हिस्ट्री जो है वो उसके ख्याल में इकोनॉमिक यानी डायलेक्टिकलिज्म है। और एक सिचुएशन या एक क्लास जो है वो एक थीसिस है और उसका फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है किसी दूसरी क्लास से। सो उसने हिस्ट्री को इस तरह इंटरप्रेट किया और उसने फॉर एग्जांपल ये कहा कि पहली जो सोसाइटी है, फर्स्ट सोसाइटी, वो है कम्युनिस्ट सोसाइटी, जिसमें कोई ओनरशिप जो है वो नहीं है और उसमें जो है वो एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द होल ऑफ द कम्युनिटी। एक ग्रुप जो है, ट्राइब कहें या कम्युनिटी कहें, वो कलेक्टिव ओनरशिप है। सो ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। और उसके बाद जो है वो यानी इंसान जो है उसने ओन करना शुरू किया और वो ओन भी उसने दूसरे इंसानों को करना शुरू किया, क्योंकि कम्युनिज्म जो था वो एफिशिएंट नहीं था और उसमें ये चेंज आया कि एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने दूसरे लोगों से काम लेना शुरू किया एंड दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी ज्यादा एफिशिएंट थी, इसलिए अल्टीमेट हर चीज यानी मूव करने की एक वजह है। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि उसके अंदर एक नया सिस्टम पैदा हुआ और फिर स्लेवरी के अंदर जो है वो फर्दर जब और एफिशिएंसी के लिए और फ्यूडलिज्म जो है वो आया, यानी जब एग्रीकल्चर डिस्कवर हुआ, सो इट लेड टू फ्यूडलिज्म। और फ्यूडलिज्म के अंदर फिर जो है एक क्लास पैदा हुई जिसने चैलेंज किया, जो एंटीथेसिस बनी फ्यूडल लॉर्ड्स की, और वो मर्चेंट क्लास थी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर मशीन ईजाद हुई तो कैपिटलिज्म आया। अब कैपिटलिज्म जो है वो खुद एक उसमें प्रॉब्लम है और मार्क्स का ज्यादा काम जो है वो बेसिकली इट इज ऑन द क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म पे पूरा क्रिटिकल जो काम है उसका क्रेडिट मार्क्स हो जाता है और द कैपिटल जो है वो बेसिकली यही है, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। और इसमें उसने कहा कि जो अपर क्लास है यहाँ पे, फ्यूडलिज्म में क्या था? फ्यूडलिज्म में जो मिडिल क्लास थी, जो मर्चेंट क्लास थी, मिडिल क्लास कहना चाहिए, वो उन्होंने अपोज किया, वो एंटीथीसिस थे फ्यूडल लॉर्ड्स का, जिनके पास जमीनें थी। तो फ्यूडल लॉर्ड्स, अरिस्टोक्रेसी, और उसको अपोज कौन कर रहे हैं? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के लिए जो